السلام علیکم۔ آج بروز منگل 5 نومبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، سعودی عرب اور قطر کا دورہ کامیاب رہا۔ سعودی وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم کا کابینہ سے خصوصی خطاب۔ سروسز چیف کی مدت ملازمت 5 سال ہوگی۔ جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد چیف جسٹس سمیت 34 کرنے کا بل بھی منظور۔ پاک بحریہ کا جنگی بحری جہاز سے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ نظام جدید ترین نیویگیشن سسٹم کے ساتھ اپنی سمت اور رفتار کو تبدیل کرنے کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان سمیت بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 6 خارجی ہلاک۔ 47ویں امریکی صدر کے انتخابات کے لیے ووٹنگ۔ امریکہ کا صدر کون ہوگا، ڈونلڈ ٹرمپ یا کیملا ہیرس؟ فیصلے کا دن آ گیا۔ مودی سرکار کی انتہا پسندی نے دنیا کے 7ویں عجوبے کو بھی نہ بخشا۔ تاج محل میں نماز ادا کرنے پر ایرانی جوڑے پر خوفناک تشدد، تحریری معافی نامہ بھی لکھوایا۔ IBSF ورلڈ اسنوکر چیمپئن شپ، پاکستان کے محمد آصف کی قطر کے احمد سیف کو 4-3 سے شکست۔ کوارٹر فائنل میں UAE کے محمد شہاب سے مد مقابل ہوں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور قطر کا دورہ کامیاب رہا۔ سعودیہ سے وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکومت سے وفود کی سطح پر مذاکرات اور ولی عہد محمد بن سلمان سے 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، جس میں محمد بن سلمان نے ایک بار پھر پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان نے اپنی سرمایہ کاری ٹیم بھیجی ہے، جن سے تفصیلی میٹنگ کے دوران سولر، مائنز اینڈ منرلز، ایگریکلچر اور دوسرے باہمی امور کے مفادات پر بات چیت ہوئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ سعودیہ کے بعد قطر کا بھی دورہ کیا، جو مفید ثابت ہوا۔ امیر قطر سے وفود کی سطح پر 1-on-1 ملاقاتیں ہوئیں۔ قطر نے $3 ارب سرمایہ کاری کی یقین دہانی کروائی ہے۔ قطر کا وفد رواں ماہ پاکستان آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ IT کے شعبے میں بہت گنجائش ہے۔ پاکستان سے ہمیں اس شعبے میں لاکھوں افراد کی ضرورت ہے۔ امیر قطر نے بھی پاکستان میں ایک IT پارک قائم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ نے تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ فوجی سربراہان کی مدت ملازمت میں توسیع پالیسیوں کے تسلسل کے لیے کی گئی ہے۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے تحت پاکستان کی بڑی فوج میں جنرل کی ریٹائرمنٹ کے قواعد کا اطلاق آرمی چیف پر نہیں ہوگا۔ تعیناتی یا ایکسٹینشن کی صورت میں آرمی چیف بطور جنرل کام کرتا رہے گا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کرنے اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2024 سمیت 6 ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور شدہ 6 بلز پر دستخط کر دیے، جن کے ساتھ ہی تمام بلز کو قانونی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف پیس کیپنگ ٹریننگ سینٹر کی 28ویں سالانہ کانفرنس پاکستان میں پہلی بار سینٹر فار انٹرنیشنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی اسلام آباد میں 4 سے 8 نومبر کے لیے منعقد ہو رہی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی عالمی امن کو مختلف خطرات اور ابھرتے ہوئے چیلنجز کا سامنا ہے۔
अक़वाम मुत्तहदा और दीगर तंजीमों की जानिब से फ़रोग़ अमन की कई कोशिशों के बावजूद बेगुनाह मासूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस सिलसिले में अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। UN अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए पीस ऑपरेशंस ने अक़वाम मुत्तहदा के अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। सालाना कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पर पाकिस्तान के इक़दामात को भी सराहा। ये कॉन्फ्रेंस 8 नवंबर तक जारी रहेगी। अंडर सेक्रेटरी जनरल महकमा अमन ऑपरेशन अक़वाम मुत्तहदा के पुलिस एडवाइज़र, कायम मुकाम डिप्टी मिलिट्री एडवाइज़र, पाकिस्तान के शोबे खारजा और रेक्टर NUST ने भी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री ने CIPS की नई इमारत के इफ्तिताह भी किया। पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ISPR के मुताबिक 350 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल सिस्टम ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी सिमत और रफ्तार को तब्दील करने की खुसूसी सलाहियत भी रखता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मिसाइल तजर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए 6 खारजियों को हलाक कर दिया, जबकि बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दिवसाली में खारजी अहमद शाह उर्फ इंतज़ार मारा गया, जबकि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खरमंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 5 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत से बारहा मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तवक्का है कि अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। वाज़ेह रहे कि 2 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन करते हुए 4 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया था। दूसरी जानिब जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में रात गए बागीचा स्टॉप पर फील्डर गाड़ी पर नामालूम अफराद के रॉकेट हमले से CTD पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फील्डर गाड़ी को पहले रॉकेट से निशाना बनाया गया और फिर फायरिंग की गई। जाँ बहक होने वालों में CTD पुलिस एहलकार और 2 सिविलियंस शामिल हैं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए वाना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम शोहदाए जम्मू मनाएंगे। भारतीय फौजियों और हिंदू इंतहा पसंदों ने जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में नवंबर 1947 को लाखों कश्मीरी मुसलमानों को उस वक्त शहीद कर दिया था जब वो पाकिस्तान की जानिब हिजरत कर रहे थे। कश्मीरी हर बरस यौम शोहदाए जम्मू मनाकर उन शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। यौम शोहदाए जम्मू पर पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में भारत मुखालिफ मुजाहिरे, रैलियां, सेमिनार्स और दीगर प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ समाजी, सियासी, मजहबी और दीगर अवामी नुमाइंदा तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम खुसूसी दुआया तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद में 2.5% कमी कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़री पॉलिसी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में पॉलिसी रेट को 250 बेसिस पॉइंट्स कम करके 15% करने का फैसला किया है। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है और अक्टूबर में अपने वस्त मुद्दती हदफ के करीब पहुँच चुकी है। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के नए प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है, जिससे गैर यकीनी की कैफियत कम हुई है और मुजव्वज़ा ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक मौजूदा शरह सूद से मुआशी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। अमेरिका के 47वें सदर के चुनाव के लिए वोटिंग आज होगी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप, जबकि डेमोक्रेट्स की जानिब से अमेरिका की मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस आमने सामने होंगी।
5 नवंबर के बाकायदा इलेक्शन से पहले तकरीबन 8 करोड़ शहरी वोट डाल चुके हैं। बाकी वोटर्स आज अपने पसंदीदा उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 435 अरकान नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। इस हवाले से तमाम रियासतों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स में पोलिंग का आगाज़ और इख्तिताम मुख्तलिफ औकात में होगा। 18 करोड़ से ज़ायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इब्तदाई वोटिंग पोल्स में कहीं कैमला हैरिस आगे तो कहीं ट्रंप को बढ़तरी हासिल है। इब्तदाई वोटिंग में नॉर्थ कैरोलिना में 55%, जॉर्जिया में 50% और टेनेसी में 49% वोट कास्ट किए गए। टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। ताजमहल में नमाज अदा करने पर ईरानी जोड़े को इंतहा पसंद हिंदुओं ने तशद्दुद का निशाना बनाया। भारत का सेक्युलर चेहरा बेनकाब हो रहा है। भारत में आबाद मुसलमान तो इंतहा पसंद हिंदुओं की जद पर रहते ही हैं, अब गैर मुल्की सयाह भी महफूज नहीं। ताजमहल की सैर को आए ईरानी जोड़े ने महल के मशरकी गेट के नज़दीक एक मस्जिद में नमाज अदा की तो हिंदू इंतहा पसंदों ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ईरानी सयाहों को हिरासत में ले लिया। इंतहा पसंद हिंदुओं के दबाव पर उनसे माफ़ीनामा तहरीर करवाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ईरानी जोड़े का मौक़िफ़ था कि नमाज का वक्त होने पर मस्जिद का दरवाज़ा खुला देखकर वहां नमाज अदा की, हमने कौन सा जुर्म किया, ज़बरदस्ती माफ़ीनामा लिखवाया गया है। चीन के लड़ाका तैयारों की आबनाए ताइवान पर परवाज। ताइवान का कहना है कि सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। ताइवान 1949 से खुद मुख्तार है, ताहम चीन उसे अपना हिस्सा करार देता है। चीन के 37 लड़ाका तैयारों ने आबनाए ताइवान पर परवाज की, जिसका मकसद खित्ते में गैर मुल्की मुदाखलत की मुमकिना निगरानी करना था। गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका और कनाडा के बहरी जंगी जहाज़ आबनाए ताइवान से गुजरे थे। चीन की हालिया परवाज में J-16, H-6 और KJ-500 लड़ाका तैयारे शामिल थे। ताइवान की इंतज़ामिया का कहना है कि सूरत हाल को फ़ौजी नुक्ता नज़र से देख रहे हैं, जबकि चीनी हुक्काम का कहना है कि ये मामूल की परवाज़ थी जो आबनाए ताइवान से बहरुल काहिल तक की गई। IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में खेले गए वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ ने कतर के अहमद सैफ को 4-3 से शिकस्त दे दी। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद आसिफ का मुकाबला UAE के मोहम्मद शहाब से होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के असजद इकबाल को प्री क्वार्टर फाइनल में कब्रस के प्लेयर ने शिकस्त दे दी। माइकल जारगेव ने असजद इकबाल को 2 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।